ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕੁਝ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਲਾਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਟ ਸਾਖਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਤੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀਟਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਨ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਟੀਮ 10 ਕੁ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਾਣਿਆ, ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਲਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ADO ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਨਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ, ਬੀਜ ਬਣਾਉਣੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੀਟ ਸਾਖਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਫਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਜਰਬੇ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਫਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਮਨਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਨਵੀਰ ਜੀ, ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੇੜੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। मैं मनवीर जी ਨੂੰ माइक सौंपता हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। मैं एक छोटा किसान हूँ आपकी तरह का, लेकिन मेरा एक सौभाग्य रहा है कि मैं डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जियों का शिष्य रहा हूँ। डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी के बारे में कोई कहता है कि वो बीज के वैज्ञानिक थे, कोई कहता है कि वो कीड़ों के वैज्ञानिक थे। डिग्रियाँ उनके पास में कुछ भी हों, लेकिन सच्चाई में वो आदमियों के जीवन के वैज्ञानिक थे। एक डिक्शनरी थे। आपको जहाँ भी आप कभी भी मतलब ये महसूस होता है यहाँ दिखते आगे, उनसे सवाल करो, आपका तुरंत समाधान था उनके पास में। चलते हुए आदमी के बारे में बता देते थे कि आदमी खराब तबीयत का है, बढ़िया तबीयत का है। अपने जीवन में संघर्ष के साथ में उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की। 10वीं के बाद में रेलवे में एक डाक विभाग होता है, उसमें 140 रुपये की नौकरी ज्वाइन कर ली थी। किसी दोस्त ने उनसे 140 रुपये एडमिशन के वास्ते उधार मांग लिए, तो उन्होंने बेझिझके 140 रुपये दे दिए, लेकिन उनके पास में टोटल उस दिन 145 रुपये थे जेब में, दूसरा सोर्सेज नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि भाई 5 रुपये तेरे पास बचे हैं, महीना कैसे निकालेगा। तो दूसरा कोई सोर्सेज उसको नज़र नहीं आया, तो उन्होंने एक रिक्शा ली किराए पे। 2 रुपये में प्रति दिन की रिक्शा किराए पे मिलती थी, उसके हिसाब से उन्होंने वो महीना निकाल दिया। अचानक उनकी सोच बदल गई, जब तू 1 महीना अपना खर्चा निकाल सकता तो अपनी पढ़ाई का भी निकाल सकता। उसी टाइम से वो नौकरी छोड़ दी और अपनी BSc की उसमें एडमिशन ले लिया।
उसके साथ में उन्होंने अपने भाइयों को भी पढ़ाया, अपने भी खुद स्कॉलरशिप ले लेके पीएचडी की उन्होंने। वो बीज बनाने वाले वैज्ञानिक बनना चाहते थे, उसमें उन्होंने काम भी ऐसा किया उससे पहले किसी वैज्ञानिक ने नहीं किया था, लेकिन उन्होंने उसको दर्ज नहीं कराया यूनिवर्सिटी ने, क्योंकि उनको महसूस हुआ कि ये काम अमेरिका को जा रहा है, मेरे देश को नहीं जा रहा। मैं मेरे देश के लिए जीवन जीना चाहता हूँ, दूसरे देश के लिए नहीं। वहाँ से छोड़ के जीन में आके एडीओ लग गए और किसानों के साथ में लगे। कभी भी उन्होंने नौकरी की परवाह नहीं की, चाहे डायरेक्टर आया, चाहे सीएम आया, कुछ भी आया, किसान के मतलब की बात हुई तो उनको छोड़ के किसान के साथ हो लिए। किसानों की साइकोलॉजी के बारे में उनको, आदमियों की साइकोलॉजी के बारे में उनका पहले भी तजर्बा रहा है। उन्होंने कीट साक्षरता में काम किया है, किस मतलब लोकल गाँव में गरीब आदमियों को उठाने का काम भी उन्होंने पहले किया हुआ था। तो उनका तजर्बा इससे पहले आम आदमी की सोच के साथ में था। सभी धर्मों के ग्रंथ, सभी बुद्धिमानी किताबें उनके जहन में थी, सभी पढ़ी हुई थी उनकी। किसी भी बुक के बारे में आप उनसे पूछे तुरंत बता देते थे। तो जिस तरह आज दुनिया में बुद्धिमान लोग बगैर जहर का खाना लाना चाहते हैं, उसी सोच के तहत डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी ने भी एक मिशन चलाया था। लेकिन जिस तरह यहाँ नाम अलग अलग हैं, कोई जीरो बजट खेती कहता है, कोई कुदरती खेती कहता है, कोई प्राकृतिक खेती कहता है, इसी तरह उनका भी एक अलग से ही सिस्टम था। भाई जहर तो ख़त्म करना है, लेकिन मैं अपने तरीके से, वो वैज्ञानिक आदमी थे, अपने जीवन को स्टेप बाय स्टेप जीते थे। इसी तरह उन्होंने इसमें भी एक सिस्टम बना दिया कि मैं इसको पहले जहर से मुक्त करूँगा, फिर खाद से मुक्त करूँगा, और फिर इसमें खर्च कम वाली बात पे आएंगे। तो उस लेवल में उन्होंने आसपास के किसानों को जाना कि भाई ये लोग इसमें आगे बढ़ सकते हैं, उनको इकट्ठा किया एक गांव में, और पहले जितने कीटों की उनको पहचान थी, उन कीटों की पहचान उन किसानों को कराई। उनके बाद में उन किसानों से तजर्बा पूछा, भाई इतने कीटों की जानकारी के बाद में आप कैसा महसूस करते हैं। जब उनका ये महसूस हुआ है उन किसानों को कि हम कीटनाशक बेफजूल में प्रयोग करते हैं, तब उन्होंने छोड़ने की सलाह दी। पहले शुरू में ये नहीं कहा कि आप कीटनाशक बंद कर दीजिए, पहले उनका दिल ठोका, उनके मन से भय निकाला, तब उनको छोड़ने की सलाह दी। उसके बाद में उन किसानों को लेके वो व्यापक रूप से बढ़ते चले गए। लेकिन भगवान को शायद उनका साथ हमारे ज़्यादा, मतलब हमारा भाग्य ऐसा नहीं था कि वो हमारे साथ में ज़्यादा दिन तक रह सके। उनकी गाइडलाइन हमें महसूस होती है कि उनकी गाइडलाइन के बगैर हम लंबे नहीं चल पा रहे। उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। लेकिन उनके काम को कुछ उनके जो चेले हैं वो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। थोड़े उलझे हुए हैं, मेरे हिसाब से वो कुछ दिनों में संभल भी जाएंगे और उसी लाइन पे ये काम आगे बढ़ भी जाएगा। तो उन्होंने किस स्टेप से चलाया था, उसी स्टेप से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले उन्होंने महसूस किया भाई किसान कीटनाशकों का प्रयोग तो कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि आप लोग कर क्यों रहे हैं। कभी भी कीड़े मारने के लिए जहर का प्रयोग करके किसान ये बात नहीं करता कि मैंने फलां कीड़े को मारने के लिए जहर प्रयोग किया था और उसकी संख्या इतनी घट गई। किसान उल्टी बात करता है कि मैंने कीटनाशक का प्रयोग किया था और मेरी फसल का रंग बढ़िया हो गया, उसकी बढ़वार बढ़िया होगी, उसकी इतने मन में उपज बढ़िया होगी। तो उन्होंने महसूस किया कि इनको कीटों की पहचान ही नहीं है, कीटों का पता ही नहीं है भाई कितना नुकसान करते हैं कितना नहीं। तो उसी स्टेप को उन्होंने शुरुआत की। पहले उन कीटों की पहचान की जिनका सबसे ज़्यादा खौफ था, और फिर उसके साथ में जितने कीट मिलते गए उनका कितने के बाद में नुकसान शुरू होता है उस लेवल को किसानों को समझाया, और उसके बाद में मतलब उनकी काउंटिंग करने का तरीका सिखाया। तो किसान का खुद का भय निकलता गया और किसान कीटनाशक छोड़ते गए। उन्होंने पर्सनली किसी से ये नहीं कहा कि आप कीटनाशक छोड़ दीजिए। जिस किसान को 26 कीड़ों का ज्ञान हो गया, अच्छे माड़े कैसे भी, वही किसान तौबा करता गया। जिसको 50 के करीब हो गया वो लठले से भी मतलब कीटनाशक का प्रयोग नहीं कर सकता अपने खेतों में। तो उसी तरीके को मैं आप लोगों को समझाने के साथ में शुरुआत करता हूँ। पहले जिन लोगों ने इसका व्यापार फैलाना था उन्होंने नाम दिया था दुश्मन कीट और मित्र कीट। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा इस दुनिया में न कोई हमारा दुश्मन है न हमारा मित्र है। सगे भाई के साथ जितनी हम धोखाबाजी करते हैं वो दूसरे के साथ में किसी के साथ नहीं करते। जब सगा भाई हमारा मित्र नहीं तो कीट और दूसरे जीव हमारी मित्रता क्या निभाएंगे। जो शाकाहार खा के गुजारा करते हैं वो शाकाहारी कीट हैं,
जो मांसाहार खा के गुजारा करते हैं वो मांसाहारी कीट हैं, इसके अलावा उनका कोई वो नहीं है। अपने बच्चे पालना और अपना जीवन निर्वाह करना उनका ध्येय है, हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है। तो सबसे पहले मैं इस सेशन में आपको बताऊंगा शाकाहारी कीट। पहले मांस और शाक खाने वाले कीटों का उन्होंने वर्गीकरण किया, लेकिन शाकाहारी कीटों में भी किसान अच्छी तरह से याद कर लें, उसका भी उन्होंने वर्गीकरण कर दिया। कुछ कीट केवल रस पी के गुजारा करते हैं, उनको उन्होंने रस चूसक नाम दिया। इसके अलावा कुछ कीट ऐसे होते हैं जो केवल पत्ते ही खाते हैं फसलों के, उनको उन्होंने नाम दिया पर्णभक्षी कीट। इसके बाद कुछ कीट ऐसे हैं जो केवल फूल ही खा के गुजारा करते हैं, उनका नाम दिया उन्होंने फूलाहारी कीट। और जो केवल फल खा के गुजारा करते हैं वो फलाहारी कीट। 4 वर्गों में उन्होंने कीटों को बांट दिया ताकि किसान को समझने में आसानी हो, उनका डर निकले। 20 प्रकार के कीट जो अभी तक हमने मिले हैं वो रस चूस के गुजारा करने वाले हैं। इनका भी उन्होंने 3 वर्गों में विभाजन कर दिया। सबसे पहले मेजर कीट। सबसे पहले मेजर कीट, फिर दूसरा है सूबेदार मेजर कीट और तीसरा है आल गोल हल्लू गोलू। मेजर कीट वो हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा कीटनाशकों का प्रयोग कराते हैं, किसान जिनसे सबसे ज्यादा डर रहे हैं। ये वो 3 कीट हैं जिन्होंने कीटनाशकों की तबाही मचाई हुई है। सफेद मक्खी, चिट्टा मच्छर बोलते हैं आप जिसको, हरा तेला, जैसिड भी अंग्रेजी का नाम है इसका, और चुरडा थ्रिप्स जिसको हम बोलते हैं। यही 3 कीड़े हैं जो रस चूस के पौधों से अपना गुजारा करते हैं और किसान इनसे सबसे ज़्यादा भयभीत हैं और कीटनाशकों का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं इन कीटों पे। पहले मैं इन्हीं के बारे में बता देता हूं। सफेद मक्खी भाषा के में भी थोड़ी दूषितता के कारण किसानों ने जिस कीट को सफेद मक्खी समझा वो स्लेटी भूंड था। घरेलू मक्खी के बराबर उसका साइज था, सफेद सा उसका रंग हो गया, किसानों ने उसको सफेद मक्खी समझ लिया। क्योंकि ये जो कीट है इतना छोटा है, न तो इसका मक्खी में साइज मिलता न मक्खी में इसकी शक्ल मिलती। 2 दिन की ढाडी, ये रूम को यदि मैं काटूं तो इतना छोटा कीट है ये। तो ये पत्तों के नीचे से रस पीते हैं और अपना गुजारा करते हैं। 120 के आसपास अंडे देती है।
किताबों में 100 से 250 तक लिखा हुआ है, लेकिन हमने जितनी बार भी इनको गिनने की कोशिश की है तो वो 120 से 150 तक मिले हैं। जीवन काल अपनी परिस्थितियों के अनुसार छोटा बड़ा करती रहती है। मिनिमम 17 दिन और मैक्सिमम 72 दिन तक का जीवन काल गुजारती है। जब एक सफेद मक्खी 120 के आसपास बच्चे देती है और 5 दिन में उसकी पीढ़ी बदल जाए तो उसकी 1 महीने में तो इतनी संख्या हो जानी चाहिए सारी फसल सफेद हो जाए। 120 को यदि आप बार बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन ऐसा सीन हमने कभी देखा नहीं। तो इससे साफ जाहिर है कि वो उसको खाने वाले, कंट्रोल करने वाले कीट भी हमारे खेतों में मौजूद हैं। वो मैं तब पढ़ाऊंगा जब हमारा मांसाहारी कीटों के बारे में वाला सेशन चलेगा। दूसरा कीट है इसमें हरा तेला। हरा तेला भी पत्तों के नीचे ही आपको मिलेगा। इस सफेद मक्खी से 3-4 गुना उसका थोड़ा बड़ा साइज है। इसका जीवन काल 17 से लेकर 23 दिन तक का किताबों में लिखा हुआ है। और रस पीने का जो टाइम है वो 6 दिन तक ही है इसका। जब इसके पंख जम जाती हैं तब ये कहीं कहीं से उड़ उड़ के रस पीता है, तो नुकसान की हद में नहीं रहता। यदि आप कभी कंफ्यूज हो जाए ये हरा तेला है या कोई दूसरा हरा कीट है, आप उसको छेड़ के देखें तो वो टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, हरियाणा रोडवेज की बस की तरह। तीसरा कीड़ा है चुरडा, थ्रिप्स जिसको बोलते हैं। ये पतला बादामी है कलर का, पानी सा रंग बच्चे का, इसका थोड़ा बड़ा होने के बाद में बादामी सा रंग और बाद में पंख जम जाती हैं। छोटा कीड़ा है, नसों के आसपास में आपको घूमता मिलेगा। जब ये रस पीता है ऊपर वाले जबड़े से खुरच देता है, रस पत्ते के बाहर आ जाता है, कुछ ये पी लेता है, कुछ वहीं बिखरा मिलता है, तो वो रस बाद में चांदी के रंग में तब्दील होकर मतलब उस पत्ते के नीचे चिपक जाता है। वो इसका नुकसान महसूस होता है। ये 10 का लेवल चुरडे का, 2 प्रत्येक पत्ता हरे तेले का और सफेद मक्खी का 6, प्रत्येक पत्ता उस लेवल पे चले जाएं तब जाके हमने ये सोचना है ये कभी नुकसान भी कर सकते हैं। उससे नीचे है तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। सफेद मक्खी 6, हरा तेला 2, ओस्त आनी चाहिए। ये नहीं कि एक पत्ते पे आपको 10 सफेद मक्खियां मिल गई और आपने ढोलकी उठा ली। आपने उस पौधे के सभी पत्तों की औसत निकालनी है और 10 पौधों में से औसत निकलेगी। तरीका ये रहेगा, छोटे पौधे हैं आपके, एक पत्ता ऊपर से लिए, एक बीच से लिए, एक नीचे से लिए, तीनों पे जितने कीट मिले उनका टोटल, फिर दूसरे पौधे का, फिर 10 के 10 पौधों का टोटल मिला के उसको 30 से भाग दे दीजिए। जो एवरेज आएगी वो एवरेज आपकी 6 से ऊपर जाती है तो आप चिंतित होना चाहिए। हरे तेले की 2 से ऊपर जाती है तो चिंतित होना चाहिए, और 10 से ऊपर चुरडे की जाती है तो भी चिंतित होना चाहिए। चिंतित होना चाहिए, न कि कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। यदि आपकी फसल होगी 200 से ऊपर पत्ते की तो आपने 3 पत्ते ऊपर के, 3 बीच के और 3 नीचे के लेने हैं। उसी तरह 10 पत्ते, उसमें आपको 90 से भाग देना पड़ेगा जितनी टोटल आएगी। जो एवरेज आएगी वो आपकी एवरेज, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। मेरा जो एक्सपीरियंस है, 6 साल तक लगातार 14 गांव से 3-3, 4-4 किसानों के डाटे इकट्ठे किए हैं एक जगह पे बैठ के। कभी भी हमने 4.5 से ऊपर सफेद मक्खी नहीं देखी। 2 से के आसपास आ जाता है हरा तेला, कई बार ऊपर कभी नहीं गया। चुरडा 6 से ऊपर नहीं गया। ये 14 गांव से हमने डाटा इकट्ठे लिए हैं, यानी 50 सैंपल, 50 खेतों के सैंपल और 5-5 ग्रुपों द्वारा लिए हुए सैंपल, यानी आप 250 सैंपलों में ये कह सकते हैं कि आपने 6 साल तक कभी भी इस ETL लेवल को अप नहीं देखा। जब इसको उस ETL लेवल से ऊपर ही नहीं देखते, नुकसान की हद से ऊपर ही नहीं देखते, तो हम कीटनाशकों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? वो है हमारा डर, भय और भ्रम की स्थिति। इसके बाद में आते हैं सूबेदार मेजर कीट, जो रस चूस के, ये भी सदा से मेजर नहीं थे। इससे पहले अमेरिकन सुंडी और चित्तीदार सुंडी मेजर होती थी, वो रिटायर होगी तो ये मेजर बन गए। तो कल नहीं इनका भी नंबर आना है रिटायर होने का। तो जो मेजर बनेंगे उनमें हैं 2 बणिये, एक लाल बणिया
ठीक है जी, कोई बात नहीं, हम तो पीटेंगे तो देख लेंगे जी। लाल बाणिया, काला बाणिया, मिलीबग, माइट और चेपा। रेड कॉटन बग लाल बाणिये का नाम है, डस्की कॉटन बग काले बाणिये का नाम है। मिलीबग को आप जानते ही हैं। ये माइट है, मकड़ियाँ जूं, काफ़ी छोटी है, स्पीड में चलती है। और चेपा अल आपने देखा एफिडियस। बढ़िया मंडी वाला हो, जैतो का हो, जींद का हो, जलंधर का हो, किसान को चोट पक्का मारेगा, लेकिन किसान उसकी चोट से डरेगा नहीं, उसको पकड़ नहीं पाएगा। खेत वाला होगा तो भी मारेगा, काला हो तो भी मारेगा, लाल होगा तो भी मारेगा। ये कीट निश्चित रूप से हमारी फसलों के रस पी के हमारे नुकसान करते हैं, लेकिन किसान इससे डरते नहीं। इसके मारने वाले जहर का किसी किसान को पता नहीं। क्यों डरते नहीं? तो इन्होंने पता भी नहीं किया, उसको मारा भी नहीं कभी। मारा क्यों नहीं? जो नुकसान इसका किया हुआ किसान के आता है, वो उन लोगों को फायदा पहुंचा रहा है जिन्होंने हमसे रुई लेनी है। और रुई लेने वाले और दवा बेचने वाले एक ही परिवार के लोग हैं। इसका नुकसान उनको फायदा किस लिए पहुंचा रहा है, मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूं। 1 क्विंटल कपास लाला जी ने मेरे खेत से खरीद ली, जिससे इस लाला जी ने तेल नहीं पी रखा था, और एक आपके खेत से ले ली जिससे इस लाला जी ने तेल पी रखा था। दोनों के लिए उन्होंने 5,000 रुपये 1 क्विंटल के मेरे को दे दिए, 5,000 रुपये आपको दे दिए। जब लाला जी उससे रुई निकालेंगे, मेरे खेत से ली हुई कपास से जो रुई निकलेगी वो 33 किलो निकलेगी, और बिनोड़ा उसमें 67 किलो निकलेगा। और जो इसने तेल पी रखा था उसमें से 60 किलो बिनोड़ा निकलेगा, रुई 40 किलो निकलेगी। और जिस लाला जी ने हमसे कपास खरीदी उसने रुई के लिए खरीदी, बिनोड़े के लिए नहीं। 5,000 रुपये में एक जगह से 40 किलो रुई ले गए, एक जगह 33 किलो मिली, तो उनको घाटे का सौदा क्यों करेंगे? वो हमें डराएंगे नहीं इससे, ये पीता रहेगा। हमारे हरियाणा में कहावत है कि भाई ये बढ़िया आ गया तो अब की बार कपास का भाव आएगा। भाव इसीलिए आएगा क्योंकि वो तेल तो ये पी लेगा, रुई उनके लिए चौखी बचेगी। ये छोटे वाला है डस्की कॉटन बग काला बढ़िया, ये तो खेत में तो पीता ही पीता है, साथ में जब हम चुगाई करके घर पे डाल देते हैं तब भी पीता रहता है। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, खेत में आज चुगाई वाली गई, 8 मन आज की आ गई, 9 मन कल की आ गई, टोटल 40 मन कपास मैंने तोल के घर पे डाल दी। जब मंडी में देने गए तो 32 मन हुई, 34 मन हुई। तो फिर वो शक में पड़ते हैं कि वे मेरे बच्चों ने चोरी तो नहीं कर ली, घरवाली तो नहीं कहीं पीछे से डिगाती, या चुगाई वालियों ने मेरे साथ धोखा तो नहीं किया, इसमें मिट्टी के डले वगैरह साथ में तुलवा दिए हों और बाद में निकाल दिए हों। लेकिन इस लाला जी पे उनका भी ध्यान नहीं जाता, ये वहाँ घर पे आते हुए उसका तेल पीता रहता है। किताबों के द्वारा हम यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं। इस लाला जी के बच्चों के बारे में लिखा है कि वे ये ज़मीन में अंडे देता है। हम ढूंढते रहे ज़मीन में अंडे, ये इसका मिला बिनोले के पास में। जहाँ बिनोला है वहीं पास में आके उसका जो नर है, मादा है, वो वहाँ पे आके अंडे रखेगी। उस अंडे में से बच्चा निकलेगा और तुरंत उसमें से तेल पीना शुरू कर देगा, अपना जीवन निर्वाह वहीं से शुरू करेगा। और जब तक कपास हमारे घर में रहेगी पीता ही रहेगा। मिलीबग पंजाब में किसान ज़्यादा डरते थे, लेकिन हम इसको सूबेदार मेजरों में भी नहीं गिनते। हमारे जींद के किसान इसको सूबेदार मेजरों में भी नहीं गिनते, इसको आल गोल में ही लेते हैं। आप उसको फद्दू कहते होंगे आल गोल को। हम क्यों? डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी हमारे बीच में थे, जैसे इसका हुआ हमारे यहाँ पहुँचा तो उन्होंने तुरंत बता दिया था इससे बौद्धा कीड़ा दुनिया में नहीं। सारी उम्र इसके पंख नहीं जमती, उड़ के जाने में सक्षम नहीं है, नरम इतना है कोई भी कीड़ा इसको खाना पसंद करेगा। इसकी थैली में अंडे होते हैं,
जिन चीज़ों से वैज्ञानिक डरा रहे थे कि वे थैली में अंडे रखता है, इसकी तो संख्या बढ़ेगी, वही कमजोरियां डॉक्टर साहब ने इनको पकड़ी। वह थैली में अंडे रखता है तो किसी कीट का यदि उस थैली के ऊपर मुंह टिक गया तो सारों को खाएगा। वो दूसरी नज़र में सोचते रहे, वैज्ञानिक दूसरी नज़र में सोचते रहे। वैज्ञानिकों ने बोला कि आप खरपतवारों को निकाल दिए, कांग्रेस घास को खत्म कर दीजिए, इसमें मिलीबग नहीं पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने उल्टा कहा, मिलीबग को भी मत छेड़िए, खरपतवार को भी मत छेड़िए। यदि मिलीबग उसमें होगा तो उसको खाने वाला भी उसके साथ ही होगा। जैसे हमारी फसल में मिलीबग आएगा तो उसको खाने वाला भी उसके साथ ही आएगा। दोनों की इकट्ठी कबड्डी होगी तो हम खड़े खड़े देखेंगे और इसकी कड़ लगेगी, हमने बीच में छेड़ने की जरूरत नहीं। वही हुआ, 3 पौधों में यदि आ गया तो 3 पौधों पे ही रुक गया। सोचने वाली बात है, 3 पौधे यदि कपास के मैं लेके चलूँ, 200 ग्राम पर पौधे की कपास, 600 ग्राम कपास गई, 50 रुपये किलो के हिसाब से उसको मैं देखता हूँ तो 30 रुपये की कपास है वो। जब मैं उसको मारने के लिए चलता हूँ 350 की और 400 की दवाई लेके आता हूँ, 300 रुपये का मजदूर लेके आता हूँ और सारा दुनिया में जहर फैलाता हूँ। 30 रुपये बचाने के लिए 1000 रुपये का खर्चा कर दिया। तो इन सोचों के साथ में उन्होंने किसानों का हौसला बढ़ाया, डर निकाला। तो आज उस आसपास में मतलब कोई किसान कीटनाशक का प्रयोग करने वाला नहीं है। तो इन कीड़ों से हमने सावधान रहना है। ये माइट है जो ये 20 की संख्या में यदि चले जाए तो ये भी नुकसान कर सकती है, लेकिन अभी तक वो सीन आया नहीं है। अड़ चेपा है, कपास में जब अड़ चेपा आता है तो किसान नहीं डरता, क्योंकि बाकी कीड़ों की तरफ ही उसका ध्यान रहता है। लेकिन सरसों, गेहूं में मैंने पंजाब में देखा कि 2-2, 3-3 स्प्रे चेपे के नाम से होते हैं, लेकिन हरियाणा में नहीं होते। वो ये भी एक ऐसा कीड़ा है जिसके जब तक ये रस चूसता है तब तक पंख नहीं आती। पंख उड़ने के बाद, लगने के बाद में भी मतलब ये उड़ारू हो जाता है और उस पौधे पे भी नहीं रहता। इसको भी खाने वाले कीट बहुत हैं, इसके अंदर अपने बच्चे पड़वाने वाले कीट बहुत हैं। इसको जैसे ही आप मतलब महसूस करेंगे कि आपके खेत में अड़ा आया हुआ है, पहली बात तो किसान को पता तब चलता है जब ये पेशाब करता है, उसके अंदर फफूंद लगती है और वो कालिश महसूस होती है, काला रंग, तब जाके किसान को पता चलता है कि आपके खेत में चेपा आया था। लेकिन ये हरे रंग का कीट है, तब तक तो ये रस चूस के जा चुका होता है और तब किसान इसको देखने के लिए आता तो उसको खाने वाले कीट भी बहुत मिलते हैं सभी की, क्योंकि ये भी नरम है मिलीबग की तरह और इकट्ठा एक टहनी पे चिपका रहता है। जो भी कीट आएगा वो सारी कॉलोनी को ही खत्म करके जाएगा। तो 2-4 दिन में इसका कंट्रोल हो जाता है, दोबारा फिर ये मुड़ के नहीं आता।